एडास थ्योरी लास्ट टाइम हमने बात की थी, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. दैट वाज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन. It was a simple theory which suggests that first of all you need to get the attention of the customer. Then slowly and gradually you have to create the interest. If he or she is not having any interest in your product, then you have to create it, right? After that, desire को मैच करना है. You try to find out that what that customer desire, and then perform the action. Action means bring that customer to purchase that product. Finally the sale will proceed, and at last the satisfaction. You need to leave the customer in the state of satisfaction. So this was the theory of selling, Ada's theory of selling. इसमें आगे बढ़ते हैं. And second theory, the second theory is right set of circumstances theory. Yeah, right set circumstances theory of selling. It's a very small theory which is based on only one thing. This suggests you that despite you work on ADAS for creating the attention, the most important thing is that the circumstances or the situation should be correct. Sometimes the customer wants to purchase the product, but only because of the faulty situation, he or she may not be able to do so. Right? So this is the problem. That situation should be correct. For example, suppose you want to sell something, or if a customer wants to purchase any insurance policy or something like that, and you are calling that person in the morning at 9. So what happens that from the last 2 days you are calling him at 9 a.m. in the morning, and he need to rush to his office, and because of which he may not be able to talk to you. आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो वो he is in a hurry. Sometime he is doing his breakfast, sometime he is running for his bike or like that, right? Because he is in a hurry, and he always have in his mind the problem of jam everywhere in Delhi or city like uh, Delhi or Mumbai. There is a problem of traffic jam. So उस वजह से क्या हो रहा है कि वो he is not able to listen you properly. You call him and he always suggests you that call me after some time, या call me in the evening, and you are consistently calling him in the morning. So this is the problem which arise because of the faulty situation. Or sometimes if the person is stuck somewhere where he cannot see, he cannot pay attention to you. ठीक है, घर में कोई आया हुआ है या बैठा हुआ है और आप उस समय पे अगर पहुंचते हैं तो भी एक प्रॉब्लम आती है कि वो आपकी बात को नहीं सुन पाएगा, बिकॉज वहां पर वो सिचुएशन में नहीं है कि आपकी बात को वो सुन पाए. तो दिस इज बेसिकली दी थ्योरी कि सिचुएशन होगी सही तभी उस पर रेस्पॉन्स आएगा. आप स्लाइड पे देख भी सकते हैं. दिस थ्योरी इज नोन एज सिचुएशन रेस्पॉन्स. ओबी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, और हमने रेस्पॉन्स वगैरह की भी बातें वहां पर पढ़ी हैं. तो बेसिकली ये एसआर मॉडल है, यानी कि सिचुएशन होगी सही तो ही उस पर रेस्पॉन्स आएगा. ठीक है, एंड इट एम्फसाइजेस ऑन क्रिएटिंग अ राइट सर्कमस्टांस और सिचुएशन बाय द सेल्स पर्सन. ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप सिचुएशन को अपने हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, सो दैट ही सक्सीड इन सिक्योरिंग द अटेंशन and gaining the interest of the prospect. And if the salesperson present the proper stimuli or appeals, the desired response will result. अगर आप सक्सेसफुल होते हो कि उस सिचुएशन में भी आप सही से अपने हिसाब से आप सिचुएशन क्रिएट कर पाओ, ठीक है, तो रिजल्ट जो मिलता है वो आपको मिलता है सेल का. आप देखिए, कभी आप ट्रस्ट
बस में और ट्रेन में आपने सफर किया होगा, तो कितनी भयंकर सिचुएशन होती है वहां पर कि आप सीट ढूंढ रहे होते हैं जनरली वहां पर लोग। ट्रेन में अगर आप जनरल कंपार्टमेंट की हालत देखें, या आज की डेट में तो स्लीपर भी जनरल हो गया है, तो स्लीपर में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से यू नो जो ट्रैवलर्स हैं वो स्टेशन पे उतर रहे हैं, किसी के पास सीट नहीं है, किसी के पास सामान लगेज बहुत है तो लगेज पे ही बैठा हुआ है। मतलब सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है वहां पर। और कभी कभी वहाँ ट्रेन में आप देखते हैं कि कुछ लोग जो बेचने के लिए कुछ चढ़ते हैं वहाँ पे कंपार्टमेंट में, वो अपनी बात कह के ही मानते हैं, और उस सिचुएशन में भी, यानी उस एडवर्स सरकमस्टांसेस में भी वो आपकी अटेंशन को ले लेते हैं, अटेंशन आपकी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक स्किल है बेसिकली, कि वो इस सिचुएशन में भी जो भी चीज बेचने जा रहे हैं और आपके पास सीट नहीं है, आप खड़े हुए हैं, आपके दिमाग में ऑफिस की टेंशन चल रही है, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों को सुनते हैं और आप वहां पर कोई ना कोई चीज उनसे फिर खरीद लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली एक स्किल है कि कैसे वो सेल्समैन अपने हिसाब से सिचुएशन को अपने अनुरूप ढाल लेता है या बना लेता है। ठीक है, तो यही सिंपल थ्योरी कही गई है, राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी ऑफ selling. Now, the third one is behavioral equation theory. As the name suggests you, that basically it talks about the equation which is based on the behavior. And behavior is basically the behavior of the customer, which finally results in selling of that product, right? So this is an equation, mathematical equation इसको आप कह सकते हो, और ये दी गई है बेसिकली। तो इसमें आप देख भी रहे हैं, सबसे पहले इक्वेशन की बात मैं कर लूं तो जो बिहेवियर इसमें बताया गया है, बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर थिंग्स, दैट इज पी, डी, के एंड वी। एंड व्हाट दीज थिंग्स आर, वो उनको हम समझें उससे पहले इस थ्योरी में चार पॉइंट है जिसकी मैं पहले बात कर लेता हूं। इस थ्योरी में देखिए सबसे जो जिक्र किया गया है बेसिकली वो चार चीजों का किया गया है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें ड्राइव, फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं ड्राइव। And what is that drive? It is the innate and learned. Innate means like unconditioned. ड्राइव आपके देखिए इंटरनल होती है, अंदर से आएगी, और अनकंडीशन का मतलब है कि उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या बात हुई, आपको याद होगा ओबी में ही मैंने ही आपको डिस्कस किया था, लर्निंग की थ्योरीज आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कंडीशन रेस्पॉन्स एंड अनकंडीशन रेस्पॉन्स। तो वही बेसिकली यहाँ बात की जा रही है कि ड्राइव में अनकंडीशन एंड लर्न होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पानी पीना है, ठीक है, ड्राइव है कि यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो वाटर, पानी पीना, आपको अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं पानी पीऊं, तो ये अनकंडीशन है या कंडीशन है? कोई सोच के बताए। अगर आपको पानी खरीदना होगा किसी शॉप से, तो आप अन, इसको क्या कहोगे, अनकंडीशन या कंडीशन? एनी आइडिया? कंडीशन। कंडीशन कैसे? अनकंडीशन हाँ, मेरे पास अनकंडीशन, क्योंकि अनकंडीशनल हुआ सर। अनकंडीशनल है ना, क्योंकि भाई आप देखिए ना, आप कोई शर्त थोड़ी यस रखी है सर। आपने कि मैं पानी तब पीऊंगा जब मुझे बिल्कुल डाइनिंग टेबल पर रख के बहुत ही औपचारिक तरीके से पानी पिलाया जाएगा। क्या ऐसा होता है कभी? नहीं, तो आपने कोई कंडीशन नहीं रखी है कि ऐसा होगा तो मैं पानी पीऊंगा। तो जहां पे कंडीशन हो जाती है वो कंडीशन है, ये तो अनकंडीशन ड्राइव है। ठीक है, आपको पानी पीना है, आपको जाएंगे, आप बॉटल खरीदेंगे, पानी पिएंगे, दैट्स इट। तो ये अनकंडीशन है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो ड्राइव है वो इंटरनल है टोटली, और वो अनकंडीशन एंड लर्न होनी चाहिए। लर्न का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या स्पेसिफिक चीज चाहिए। तो एक जिक्र तो ये किया गया है। दूसरा इसमें किया गया क्यूज का। अब क्यू क्या है कि आपको थोड़ा बहुत मालूम है। क्यू जैसे हम कहते हैं ना कि कोई क्यू दो हमें यार, कुछ हमें बताओ उसके बारे में। ठीक है, तो क्यू जनरली क्या हो सकता है, इट्स अ वीक स्टिमुलाई।
वीक स्टिमुलाई का यहाँ पे भी वही मतलब है कि स्टिमुलाई मतलब समथिंग दैट इंसाइट्स यू टू टेक एनी एक्शन, इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, सब ओबी में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। और वीक का मतलब क्या है कि कमजोर है, यानी कि यू मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई एक्चुअली कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, या आपको जो प्रोडक्ट है उसके क्या फीचर्स हैं, या उस प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, सो दैट इज वेरी वीक। उसी को आगे एक्सपेंड किया गया है, इट मे बी ट्रिगरिंग और नॉन ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब ये कि आपको जैसे होता है ना ऑन अ क्लिक, कि आपको वो क्लिक कर गया और आप उसको पिक कर लेते हो। लेकिन नॉन ट्रिगरिंग का मतलब है कि इट मे नॉट बी एबल टू ट्रिगर आउट कि यार मुझे क्या यही चाहिए, जब ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, सो दैट बिकम्स नॉन ट्रिगरिंग काइंड ऑफ थिंग। तो आपको वो नहीं चाहिए, ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं बेसिकली यहाँ पर, कि वो ट्रिगर कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है, इसीलिए जनरली उसको क्यू कहा गया। इसी में शामिल है देखिए प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। कि आपको जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो यू हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट वन और टू टाइम्स ऑन टेलीविजन, बट यू मे नॉट बी हैविंग द कंप्लीट आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, कि वो कितना महंगा है, वो कितना सस्ता है, उसके क्या प्राइस है, उसकी क्या एक्सपायरी है, वो कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें बेसिकली आपको नहीं मालूम है। उसका उपयोग कैसे है वो नहीं मालूम, उसमें क्या फीचर्स है नहीं मालूम। तो ये बेसिकली दे दीज थिंग्स वर्क एज क्यूज। तीसरी चीज जो इसमें बात की गई है दैट इज द रेस्पॉन्स, ठीक है। रेस्पॉन्स बेसिकली व्हाट बायर डज, बायर क्या करता है, उसका रेस्पॉन्स क्या आता है। तो बायर बेसिकली अलग 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 तरीकों से रेस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। वो आपको इंटरेस्ट के साथ सुन सकता है, वो आपको फाइनली आश्वासन दे सकता है कि यस आई विल श्योरली गो फॉर दिस प्रोडक्ट, मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है। वो आपको क्या कहते हैं, आपको फाइनली वो परचेज भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये रेस्पॉन्स है, वो निर्भर करता है बायर के ऊपर, ठीक है, आपने किस तरीके से उसको बात समझाई है वो उस पर डिपेंडेंट है। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज जो इसमें बात की गई है री की। री बेसिकली होता है जो आप एक कंटिन्यूअस टेंडेंसी होती है ना, कि आपको अगर कोई चीज बार बार बताई जाए, या आपको कोई भी चीज के लिए मोटिवेट किया जाए और आप उस काम को कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है, just a second, any event that strengthens buyer's tendency to make a particular response, ठीक है। जैसे आप अभी कोई जैसे प्रोडक्ट जैसे होता है ना, कभी आप शॉप पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो मान लेते, तो आपको दो चार मॉडल वो दिखाता है, आपका इंटरेस्ट उसमें बन नहीं पा रहा है, वो ये देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है सेल्समैन। तो आप फिर थोड़ी देर में क्या होता है ना कि किसी आप पर्टिकुलर मोबाइल की तरफ ज्यादा अटेंशन देने लगते हो। तो जब देते हो तो आपको वो एकदम से बोलता है कि सर या मैम आप अगर ये खरीदते हो तो आई विल गिव यू एडिशनल 1000 रुपीज डिस्काउंट ऑन दिस फोन। सो दैट वर्क एज अ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कि आप उसको पिक कर लेते हो। और वो आपकी ये लिखा भी है कि स्ट्रेंथन बायस टेंडेंसी टू मेक अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। या आप उससे कहते हो कि एक साल तक इसमें फोन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं रेक्टिफाई करूंगा, एज इट इज चेंज करूंगा, वारंटी की बात कर देते हो आप। या अगर ये कह देते हो कि मैम आपने लास्ट टाइम मुझसे फोन खरीदा था हमारी शॉप से ही, और इस बार आप दोबारा खरीद रहे हैं, तो आई विल गिव लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपीज और 1000 रुपीज। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स वर्क्स एज अ री। अब now, after these four things, you can see the formula of this equation. Yeah, this equation is basically B is equal to P into D into K into V. ठीक है, तो बिहेवियर जो होगा, जो हम बात कर रहे हैं बी की, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज फोर। एंड व्हाट दीज फोर थिंग्स आर, द फर्स्ट वन इज, एज यू कैन सी बी की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द रेस्पॉन्स, ये जो हमने बात की है रेस्पॉन्स व्हाट बायर डज। तो बायर क्या करता है बेसिकली, दैट इज रेफर्ड एज बी। तो रेस्पॉन्स क्या आएगा उसका, वो देखें आप, तो पी, पी क्या है, फोर्स ऑफ हैबिट, प्रीडिस्पोजिशन और इनवर्ट रेस्पॉन्स टेंडेंसी, ठीक है। आपकी हैबिट किस तरीके की है, आप मींस फोर्स ऑफ हैबिट का मतलब है कि आप उस जैसे होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं विच जो जनरली आप रिपीटेडली परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
you purchase Tata Salt, you purchase the soap on regular basis, you purchase पेस्ट, ठीक है, ऑयल, व्हाटएवर, सफोला या नेचर फ्रेश, आप किचन का आइटम लाते हो, ये सारी चीजें, तो विच यू परचेज ऑन रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलरली, तो दैट बिकम्स योर फोर्स ऑफ हैबिट, ठीक है, जिसको आपको खरीदना ही खरीदना है, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिसको आप ऐसा नहीं है कि आप उसको उसमें कोई सिलेक्शन करोगे, यू जस्ट गो एंड यू परचेज इट, सो दैट रिफर्स टू दी पी, ठीक है। फोर्स ऑफ हैबिट क्या है, क्या उसको चेंज किया जा सकता है, क्या आपकी लॉयल्टी इतनी है कि आप कोई और प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली पी को डिनोट कर रहा है। डी है इसमें ड्राइव लेवल, जो हमने बात की थी, ड्राइव, इनेट एंड लर्न, ये ऊपर जो बात की थी, ये ड्राइव लेवल है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कितना है, यानी कि आप खुद से कितना तैयार हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। जनरली आप माइंड मेकअप करके आते हैं व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिव इन नेचर, तो आप घर से माइंड मेकअप करके आते हो कि आज मुझे फाइनली ये प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। सो दैट इज द ड्राइव लेवल। के है यहाँ पर इंसेंटिव पोटेंशियल, ये जो हम रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, इसी को बेसिकली के से यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, के, ठीक है। तो इंसेंटिव पोटेंशियल बता रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स पोटेंशियल सेटिस्फेक्शन टू द बायर, तो ये रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि के यानी कि आपने अगर इंसेंटिव पोटेंशियल भी दे रखा है, ठीक है, तो वो एड ऑन हो जाएगा। अब देखिए वेटेज है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं ना, क्रॉस के साइन लगे हैं बीच में, प्लस नहीं लगा है, इसका मतलब ये है कि बी कभी भी ट्रिगर कर सकता है, जिसमें अगर किसी भी समय पी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, या डी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, या के की वैल्यू ज्यादा हो जाए, या वी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, बाकी सारे कम हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, एक एक को अगर आप खींच के इसकी वैल्यू हाई कर देते हो, तो दैट रेस्पॉन्स विल अकर, यानी बी विल अकर, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू ऐसे मान के चलो, मान लीजिए बी इज व्हाट से 32, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है 2 into 2 into 4 into 4 हो, ठीक है, या यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि 8 into 4 हो, तो अगर एक को अगर हाई हाई कर दोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि इंसेंटिव पोटेंशियल अगर ज्यादा है, ठीक है, आपने आपने कुछ नहीं करा, आपको ये सब इग्नोर हो जाएंगी ये सारी चीजें कि फोर्स ऑफ हैबिट क्या है, ड्राइव लेवल क्या है, ठीक है। बंदा घर से निकला नमक खरीदने के लिए, टाटा सॉल्ट, अब आप देखिए फोर्स ऑफ हैबिट यानी पी, पी रही होगी उसमें, पी कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। ड्राइव लेवल, अमाउंट ऑफ मोटिवेशन भी होगा, यानी कि वो घर से सोच के निकला है कि हाँ भाई मुझे टाटा सॉल्ट लेना है। इंसेंटिव पोटेंशियल आपने रख दिया, आपने क्या करा, किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, जो मान लीजिए कोई और सा नमक है, निरमा सॉल्ट है मान लेते हैं, तो उसमें आपने क्या करा, एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री, अब ये वैल्यू आपने बहुत बढ़ा दी, यानी के की वैल्यू, इंसेंटिव पोटेंशियल खूब हाई कर दिया, तो क्या होगा कि वो बंदा टाटा सॉल्ट लेने आया, लेकिन वो जब सुन रहा है कि यार एक पैकेट खरीदो नमक का, दूसरा मुफ्त पाओ, यानी 2 पैकेट सेम प्राइस में, तो इंसेंटिव पोटेंशियल चूंकि हाई हो गया, तो वो परचेज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू, इसमें आप देखिए वैल्यू का यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि वैल्यू कितनी है क्या है, ये क्योंकि बिहेवियरल इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इसको एक लेमन टर्म्स में ऐसी समझिए कि बिहेवियरली बात की जा रही है, इसकी कोई एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पर पुट करके हम नहीं बता सकते। और लास्ट इसमें वी, वी बात की गई थी क्यूज की, ठीक है, ये अगर वीक होगा ऑटोमेटिकली तो ये नलीफाई हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 0 है, मालूम के प्रोडक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो इट बिकम 0, और 0 होते ही ये सारा 0 कर देगी, यानी उसकी पूरी सेल ही 0 हो जाएगी। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना भी है कि उसकी क्यूज जो है वो शांत होने चाहिए, उसे अगर कुछ चीज नहीं मालूम है प्रोडक्ट के बारे में, आपको कंपनी नहीं मालूम, आपको उसके फीचर्स नहीं मालूम है, तो यू शुड टेल हिम, ठीक है। तो क्यू इंटेंसिटी भी वहां पर, उसकी वैल्यू भी वहां पर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. The next one is the buying formula theory of selling. Buying formula, as the name suggests you, simple formula which leads you to buy something, ठीक है, उस पर बात की जा रही है। it was given by E.K. Strong, और बेसिकली जैसे अभी तक की जो थ्योरीज हैं जो आपने ये पढ़ी हैं, ये एडास थ्योरी, ये सब ये सेलर की तरफ एम्फसाइज करती हैं,
ठीक है, ये थ्योरी हो गई, ये थ्योरी हो गई। ये अभी तक सेलर्स की तरफ इम्फसाइज करती है, यानी कि जो बेच रहा है, ठीक है, वो इम्फसाइज कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है इन थ्योरीज को। ये जो थ्योरी है बेसिकली ये बायर साइड को फोकस करके चलती है, ठीक है, यानी कि जो खरीद रहा है वो उसकी तरफ से ये थ्योरी सजेस्ट की जा रही है कि वो क्या सोच के और क्यों चीजों को खरीद रहा है। चार बातें हैं और सिंपल एक प्रोसेस में दी गई हैं। सबसे पहले नीड, फर्स्ट स्टेप है इसमें नीड। योर नीड शुड बी क्लियर, यू शुड नो दैट व्हाट यू वांट, ठीक है। तो नीड की तरफ से आ रही है, बायर की साइड से आ रही है चूंकि ये थ्योरी, तो सबसे पहले बात की जा रही है कि भैया आपको नीड क्या है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं खरीदना। तो नीड शुड बी, बिना नीड के आप नहीं बेच पाओगे, ठीक है, यानी बायर सिर्फ देख पाएगा, सुन पाएगा, लेकिन खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसे बेसिकली नीड ही नहीं है। फिर नीड के बाद क्या बात की जा रही है, सॉल्यूशन, यानी कि उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको सॉल्यूशन भी दिखना चाहिए। जब तक सॉल्यूशन नहीं दिखेगा तब तक वो बाय नहीं करेगा, वो परचेज नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पर सॉल्यूशन दिखना चाहिए। फाइनली अगर सॉल्यूशन दिख जाता है दैट विल लीड टू परचेज, ठीक है। तो तीन स्टेप दिए गए, यानी कि आप नीड को देखिए, एज अ बायर यू शुड नो कि आपको क्या नीड है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर, उसका सॉल्यूशन किसी ना किसी चीज में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और फाइनली दैट लीड्स टू परचेज। अगर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो परचेज भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको उसमें सॉल्यूशन दिखना चाहिए, फिर फाइनली आप उसको उस चीज को परचेज कर लेते हो, ठीक है। अब परचेज डायरेक्टली यहाँ पे देखिए परचेज की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई इंसेंटिव की बात नहीं की जा रही, कोई ड्राइव की नहीं बात की जा रही है, कुछ नहीं, नथिंग। इट्स सिंपल बाइंग फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है बस कि आपको नीड हुई, आपने सॉल्यूशन दिखाया, उसने परचेज किया, और फाइनली दैट लीड्स टू सेटिस्फेक्शन, क्योंकि शुरू ही ये बात नीड से हुई है, ठीक है। जब तक नीड फुलफिल नहीं होगी तो सेटिस्फेक्शन की भी बात नहीं की जा सकती है। तो नीड का फुलफिलमेंट सॉल्यूशन में दिख रहा है और सॉल्यूशन को सजेस्ट करते हुए वो परचेज कर रहा है, और फाइनली जब वो परचेज करके घर जा रहा है तो उसको वो चीज सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये सिंपल 4 स्टेप्स में ये थ्योरी दी गई है। फिर बात की जा रही है सेल्स मॉडल। सेल्स मॉडल इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, आपको सेलिंग में ही हमने बात की थी, प्रोस्पेक्टिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, प्री प्रोस्पेक्टिंग, ये सब बात जो की थी इसमें, उसी से ही देखिए कनेक्टेड ही है, लगभग लगभग वैसा ही है। लास्ट के लगभग आपको जो स्टेप्स दिखेंगे ये जो सेलिंग मॉडल है, सेलिंग प्रोसेस है, उसी के ही है, ठीक है। तो लगभग आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ये सेल का मॉडल है, और देखिए इसमें सबसे पहले बात की जा रही है फेज 1 में क्या है, रैपट। रैपट का मतलब ये है कि आप पहले तो संबंध क्रिएट कीजिए, यू ट्राई टू क्रिएट अ रैपट विद द कस्टमर, ट्राई टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने प्रोडक्ट को भी बाद में बताएंगे, आप अपनी कंपनी का भी बाद में बताएंगे, सबसे पहले इज दी रैपट, यानी कि वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, तो पहले आप वहां पे कुछ रेपो बिल्डिंग कीजिए, अपना कुछ बताइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बताइए, ठीक है। साथ ही साथ कस्टमर के बारे में भी सुनिए। और उस समय पे देखिए दो बातें यहाँ पे की जा रही हैं, आपकी जो साइकोलॉजी है, सॉरी, जो कस्टमर की साइकोलॉजी है उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड दैट हैज अ वेटेज ऑफ 55%। एक दिया गया है क्राइटेरिया, उसमें ये नहीं भी लिखोगे तो कोई ऐसी वो नहीं है। तो साइकोलॉजी को इन्होंने वेटेज दे रखी है कि उस समय पे जो साइकोलॉजी होती है, जो थिंकिंग होती है, दैट इज दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट हैज अ वेटेज। और आपके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स आप मतलब कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, इट हैज अ वेटेज ऑफ 7%, ठीक है। सो बेसिकली रैपिड बिल्डिंग आपको करनी है फेज 1 में। फेज 2 दे रखा है डिस्कवरी। डिस्कवरी में आप डिस्कवर करने जा रहे हैं कि उसकी नीड क्या है, ठीक है। आपने अपने बारे में बता दिया, प्रोडक्ट सर्विस सब बता दिया आपने। नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। सो दैट रिफर्स एज डिस्कवरी। इसमें आप देख रहे हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि यू ट्राई टू आस्क द कस्टमर कि सर क्या चाहिए आपको। अगर आपने पूछा क्या चाहिए तो दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने और क्लोज एंडेड की बात हो गई, आपने खुद ही उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब आपने उसको छोड़ा नहीं कि सर जैसे फोन खरीदने गया मान लीजिए, ठीक है, कोई फोन लेने के लिए जाता है, आपने क्वेश्चन थ्रो किया,
सर किस रेंज में दिखा दूं, ठीक है, किस डिस्क्रिप्शन में या किस फीचर्स आपको क्या चाहिए, तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन थ्रो किए, ठीक है। और जब आप पूछ रहे हैं कि सर रेंज 5,000 से 10 के बीच में चलेगी, आपने क्या कहा, आपने कहा सर 5,000 से 10 के बीच में चलेगी या 10 से ऊपर दिखा दूं, तो आपने सिर्फ दो ऑप्शन छोड़े, आपने खुद ही उसको क्या करा है, क्लोज एंडेड कर दिया, यानी कि आपने ऑप्शन कस्टमर को नहीं दिया है, आपने अपने पास रखा है, ठीक है। तो आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई तो कर ही रहे हो, डिस्कवरी का ही पार्ट चल रहा है, लेकिन वो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ में चल रहा है। तो आपने अपने हिसाब से रख लिया कि सर 8 या 10 की रेंज में चलेगा या 10 से ऊपर दिखा दूं, तो आपने दो ऑप्शन लिए। अब वो कहता है कि नहीं 10 के अंदर चाहिए, ठीक है, तो आप 8 से 10 के बीच में जो भी फोन आपके पास उपलब्ध है वो आप दिखा दोगे, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। तीसरा आपने दिखाया, आपने जो पहुंचे उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन, तो वही बात है कि एज यू हैव डिस्कवर्ड कि आपने उसके नीड को डिस्कवर कर लिया है। थर्ड इज द डिमॉन्स्ट्रेशन, कि आप उसको फोन वगैरह जो भी है वो सारी चीजें आप दिखाएंगे, दैट रिफर्स टू डिमॉन्स्ट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उसको शो करते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिकली वहां पर सारे फंक्शन करके दिखाते हो, ये सारी चीजें बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन का पार्ट है। फिर चौथी बात आ रही है ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज में देखिए आप दिखाते समय ही, डेमोन्स्ट्रेशन करते समय ही कुछ ट्रायल करेंगे। इस सेल्स मॉडल में कहा गया कि फाइनली पहुंचते पहुंचते बीच में ट्राई भी करो, कि उसको क्लोज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप क्या होगे, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना सेल्समैन क्वेश्चन पूछता है कि तो सर ये पसंद है तो मैं पैक कर दूं, सर इसमें कौन सा कलर निकाल दूं, मतलब वो ट्राई टू फाइंड आउट कि आप उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ठीक है। वो फोन मान लीजिए आपको दिखा रहा है ब्लैक कलर में दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको ट्रायल क्लोज करने की कोशिश करेगा, यानी कि कहेगा कि सर इसमें ब्लू कलर और व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, आप कहें तो मैं उसमें से आपको पैक कर देता हूँ। तभी वो उसका इंटरेस्ट भी जान पाएगा, और उसने मान लीजिए कहा कि हाँ ब्लू वाला दिखा दीजिए, आप ब्लू वाला दिखाएंगे, ब्लू बॉडी में फोन, और आप कहेंगे उससे सर ये पैक करा दूं, ठीक है। फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं अभी कुछ और वैरायटी में या कुछ और ब्रांड में दिखा दो, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली ट्रायल क्लोज करने की, ठीक है, और आपने उसको और आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि आपको मालूम है कि वो समय ले रहा है, लेकिन बीच बीच में आप ट्रायल क्लोज करने की कोशिश करेंगे, तो ये इसमें कहा गया है। फिर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाद में आई, यानी कि अगर ट्रायल क्लोज हो जाती, आप देखिए अगर ट्रायल क्लोज हो जाती तो आप इससे बच जाते, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से, ठीक है। तो ये जो समय आपका बचता ये आप किसी दूसरे कस्टमर पे लगा पाते, लेकिन इससे नहीं बच पाए। तो आप क्या करोगे कि ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन है, उसने कहा, आपने दिखाया कि ब्लू कलर आ गया, उसने उसने कहा कि नहीं नहीं ब्लू ब्लू बहुत ज्यादा हल्का है, ब्लू डार्क है, वट एवर इट इज, ठीक है, या किसी और कंपनी में आप ब्लू कलर का दिखा दीजिए, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप जैसे भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उनको आप हैंडल कर रहे हो, और फिर ऑब्जेक्शन हैंडल करते करते फाइनली आप उसी में ही आगे बढ़कर उसको क्लोज करने की कोशिश करते हो। तो ये बेसिकली सेल्स का मॉडल है, और सीधे नंबर 1 से ये पूरी सेल्स पे फोकस करके चला है, आप देख भी रहे हैं। तो ये नथिंग न्यू इसमें, बस नाम अलग अलग है, लेकिन लगभग वही बात की जा रही है जो हम सेलिंग मॉडल के प्रोसेस में बात कर चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें लास्ट है सिचुएशन पेन इम्प्लीकेशन नीड, यानी कि स्पिन, स्पिन मॉडल है ये, और इसमें चार बातें की गई हैं, सिचुएशन, पेन, इम्प्लीकेशंस और नीड की, ठीक है। तो पहले तो इनको समझ लें कि क्या है। देखिए सिचुएशन, सिचुएशन की हम बात कर भी चुके हैं, जो अभी आपको थ्योरी मैंने बताई थी, सिचुएशन राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस वाली में सिचुएशन की बात की गई थी, तो वही इसमें भी की गई है। सिचुएशन शुड बी करेक्ट, ठीक है, आपको जो सिचुएशन क्रिएट करनी है दैट शुड बी फेवरेबल, दैट शुड बी करेक्ट, और सही सिचुएशन में ही आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। आप देख रहे हो कि बात आगे बढ़ रही है, ये ऊपर आप देख रहे हैं ना कि बढ़ रही है यहाँ पे, फिर आप बात आ रही है कि सेकंड नंबर पे बात आ रही पेन की, तो पेन बेसिकली है प्रॉब्लम, पी फॉर पेन, पी फॉर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है वो आप फाइंड आउट करो। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि आपको कोई समस्या हो ही, प्रॉब्लम समटाइम रिफर्स टू द नीड, प्रॉब्लम समटाइम्स रिफर्स टू द like what the things you desire that becomes your pain, के मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वो आपके लिए एक पेन के तरीके से काम करेगा। आप इसमें देख ही रहे हैं कि सजेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए हैं
कि व्हाट आर द प्रॉब्लम चैलेंजेस यू आर फेसिंग विद द करंट प्रोसेस या सिस्टम। अभी इस समय आपको क्या दिक्कत आ रही है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में, या अपने लाइफ में जब आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट रिफर्स टू द पेन। तो सिचुएशन सही हो और सही तरीके से आप पेन को डायग्नोज कर लो, तो ये सेकंड स्टेप आ गया। तीसरा है इम्प्लीकेशंस, यानी कि आपने वो जो पेन है बेसिकली उसका प्रभाव, ठीक है, यानी कि उसका प्रभाव आपको कहाँ कहाँ पड़ रहा है, यानी कि उस पेन की वजह से आपको क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली इम्प्लीकेशंस का पार्ट है, और इसी में ही आप सजेस्ट कराना शुरू कर देंगे कि उसको ओवरकम करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो जब आपके पास इम्प्लीकेशंस आए, इम्प्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए यू हैव टॉक्ड अबाउट द नीड पे ऑफ। नीड पे ऑफ बेसिकली सॉल्यूशंस को दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके पास उससे रिलेटेड, ठीक है, पेन के जो रिपरकशंस हैं या जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके लिए आप क्या क्या सजेस्ट कर रहे हो, दैट बिकम्स द नीड पे ऑफ, ठीक है। तो जब आपको सही सॉल्यूशन रिकमेंड आप कर देते हो, दैट रिफर्स टू द सेल। तो थोड़ा सा अलग से इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली नीड को जानने से ज्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स हैं और उनसे आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, और उसके बाद फिर वो उसका सॉल्यूशन सजेस्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात की जा रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्पिन मॉडल। और नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। बेसिकली बात यही की जा रही है कि सिचुएशन सही हो, सिचुएशन सही होने के साथ साथ आप पेन को जान लें, यानी कस्टमर क्या आपके पास सोच कर आया है, उसको बेसिकली क्या आपसे आउटकम चाहिए, ठीक है, और उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पेन से रिलेटेड। सो दैट बिकम्स द इम्प्लीकेशंस, एंड फाइनली वॉट एवर सोल्यूशन यू सजेस्ट दैट बिकम्स द नीड पे ऑफ, और फाइनली अगर वो हो जाता है तो दैट रिफर्स टू द सेल। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो आपका ये फर्स्ट यूनिट पूरा यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक इज बीइंग कवर्ड, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। एक काम ये करेंगे हम लोग कि घर पे जरा रिवाइज करिएगा एक बार अभी तक जो भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। बहुत से बच्चे लास्ट में इस ग्रुप में जुड़ते रहे हैं, एंड तक अभी तक जुड़ते रहे, ऑलमोस्ट अभी 80% बच्चे इस ग्रुप पर हैं, अभी भी कुछ बच्चे नहीं हैं, तो मेजोरिटी में बच्चे बाद में जुड़े हैं। कल हम एक काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। घर पे एक बार जो भी कुछ बताया गया है, जो भी कुछ बताया गया है इसको घर पे पढ़िएगा, और कल इसका एक मैं एक ही कल में इसको स्टार्टिंग से लेके एक रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम स्लाइड Okay, 1। sir. हाँ, स्लाइड सर ये पीपीटी ईआरपी पे है सब क्या? सब मिल जाएगी। अभी 2 दिन रुक जाओ, अभी यूट्यूब कुछ दिक्कत कर रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज अच्छा, देयर, जो भी हमने बात की है सारी स्लाइड है विद कन्वर्सेशन है, आपको सब मिल जाएगा आपके ईआरपी पे। नहीं मिलेगा तो आई विल सेंड यू द लिंक, वो आप वहां से उठा लीजिएगा सब, ठीक है। तो एक दिन रुक जाओ। तो ये सारा कुछ हम रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यस तो सर। ठीक है, तो अभी टाइम खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो इस पे कल बात करते हैं। कल पूरा हम इसको रिवाइज कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट यूनिट 2, ठीक है। सो आई एम जस्ट बाइंडिंग इट अप। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.